ID there by scanning it through your application that you have of making the online scanner. We're just doing this for the benefit of all the players here so that it's a quick run of the entire demonstration. Then immediately when you get the ID on the successful transaction, see how smooth it is and how wonderfully done this website and the interface is. Okay, so this is how the demo goes, just for you all to understand how it is done. Okay, so you have successfully registered. So the first player to register for the ISPL is Sumit Dekle. Can we have a big round of applause for Sumit? Sumit, if I could request you to just wait for a couple of minutes. Please have a look at it on the screen. So firstly, you have to enter your name. Then you go on to the surname. The surname. So that's what you enter first. Your cell number. This will be displayed all across. So you're already, yes. Then we go on to the date of birth. It's a very, very nicely made website. Just a quick demo for all of you to know how it is done. Your email ID, Sumit. Oh, nice email ID. 007 to end. At the rate. Okay, so that's where you enter your profile basically. Then the 6 franchisees or the 6 cities that we have, you click the one that you belong to, you create a password. Tennis ball cricket from the age of 8, 9, 10 in the colony, in the gullies outside where there would be competition in Navjivan. You would have one section, you had parklands where all the passes were. Then you had on the other side of the road, you had a totally different crowd. You had Marinagar at the back, you had the Dargah area, and there would be competitions where 5-6 teams would come. And just like Sumit, there will be 1 or 2 professionals on a Saturday and Sunday who will make a fortune. They'll go, they'll go for 2 hours here, 2 hours here, 2 hours here, and they're pros. They'll play for these teams at a price, and it was fascinating. And like Sumit said, there would be crowds. People would come, they would identify. This guy is, and they would know his strengths also. This moment a certain player would come, there would be a huge roar because they know there'll be some fatakra, some few shots being played. So you grew up, you would go practice in the morning in school at Azad Maidan, at Cross Maidan. When you went home after school at 5, then the mahal starts, where some, all gather together and then the tennis ball game starts. So sometimes you think the whole day you moved around the city, through trains, through buses. Like I would go in the morning from Mahin to VT, Mahin to Churchgate, then VT to King Circle, and then come back home. If that was not available, the 314 would take me to Bosco's. 90 would bring me to Electric House. So, we've come up from this thing. But the biggest thrill would be from 5 to 7. And then your parents would come and the father would come with a stick now, get in, start studying. But those were the fun days, and I think this will give the opportunity to a lot of this young talent. Sumit was absolutely right. Because once this is televised, once this is on a platform, खूप अवॉर्ड्स जिंकलेले आहेत, त्यामुळे बोलणं हे त्यासाठी काही नवीन नाहीये. पण एवढं नवीन आहे की आज आम्ही हिंदीमध्ये बोलतोय किंवा इंग्लिशमध्ये बोलतोय. सुमित, कैसा रहेगा आपके लिए एक्सपीरियंस जब आप इतने साल मैदान में खेले हैं, स्ट्रीट्स में खेले हैं, गली में खेले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं आप, तो ये ट्रांजिशन अब कैसा होगा व्हेन यू प्रिपेयर, आप तैयारी करोगे स्ट्रीट से आप स्टेडियम में जब आप और आपकी टीम खेलेगी?
सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, अमोल सर, आशीष सेला सर, रवि सर के सामने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि स्ट्रीट और स्टेडियम में बातचीत करने के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट पे। सो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ ISPL का जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। स्ट्रीट और स्टेडियम में डिफरेंस बहुत है। स्ट्रीट स्टेडियम हम लोग जब स्ट्रीट में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते वहां पे एक सबसे कॉमन चीज होती है प्रेशर। तो वो प्रेशर हम लोग को हैंडल करना इतना इजी होता है क्योंकि वहां पे वो 6 ओवर के मैच होते हैं, 6 ओवर के मैच या मैक्स टू मैक्स 8 ओवर के मैचेस होते हैं। तो वो बहुत इजी हो जाता है कि हम लोग के लिए प्रेशर हैंडल करना या तो क्विक माइंड रीड करना कि हमें ये सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं। पर जब हम स्टेडियम में जाएंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हम मेंटली कितना स्ट्रांग होंगे, क्योंकि स्टेडियम में खेलना इतना इजी नहीं होता है। जो जितने बहुत कम प्लेयर्स ऐसे टेनिस बॉल क्रिकेट के हैं जो सर शारजा स्टेडियम में हम लोग खेले, वहां पे खेलना इतना इजी नहीं होता है। वहां पे प्रेशर जितना हो सके था मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं कि हम लोग को कौन सी सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं। और स्ट्रीट से स्टेडियम तक इन लोगों ने जो ISPL इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट लाया है, ये सच में टेनिस क्रिकेट बॉल में सबसे ह्यूज कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टेनिस बॉल क्रिकेटर्स को शायद से इन फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, शायद से उनका करियर उन लोग देख सकते हैं। और जो भी यंगस्टर्स जो भी इन फ्यूचर भी आने वाले जो भी टेनिस बॉल में क्रिकेट जो अच्छे अच्छे यंगस्टर्स खेल रहे भी है, सो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होगी कि इसे हम लोग ग्रैब करें और हम एक अलग लेवल में चले जाए। और टेनिस क्रिकेट ये सच में एक क्राउड वाला टेनिस क्रिकेट होता है। हम जहां भी खेलने जाते हैं, जितने भी टेनिस क्रिकेटर्स है, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल, वहां पे क्राउड सर बहुत ज्यादा होता है। उससे हम लोग आज स्टेडियम में ये लेवल में सर ने और ISPL कमेटी या जो भी उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, सो बहुत ही मैं पूरे टेनिस क्रिकेट की तरफ से मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ कि हम जैसे जो स्ट्रीट के टेनिस क्रिकेटर्स है उनको एक इतना ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिला है कि सबके सामने हम लोग को डिस्प्ले होने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। इन फ्यूचर सच में मैं सब टेनिस क्रिकेट की तरफ से मेरी तरफ से थैंकफुल। Thank you so much, Sumit. Thank you. And Sumit, I just इस कार्यालयात बोलणार हां गल्लीतलं क्रिकेट आपण नेहमीच पाहिलं आहे मुंबईसारख्या शहरामध्ये, परंतु त्या क्रिकेटला एक एवढं मोठं प्लॅटफॉर्म जे आहे देण्याचा प्रयत्न केला जातो, काय नाही? इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग हा प्लॅटफॉर्म, हा प्रोफेशनल प्लॅटफॉर्म आमच्या टेनिस प्लेयर्सना जे प्रत्येक गल्लीत, प्रत्येक रस्त्यावर, प्रत्येक पॅसेजमध्ये, बीचेसवर आपलं टॅलेंट, आपला खेळ प्रदर्शित करतात, देशभरातल्या या युवकाला एक अच्छा प्लॅटफॉर्म की ज्यामध्ये त्याला फॉर्मल क्रिकेट स्ट्रीट टू स्टेडियम असं खेळण्याची संधी मिळेल, त्याला स्वतःचं टॅलेंट शोकेस करण्याची संधी मिळेल, त्याला त्याचं बँक बॅलन्स चांगलं करण्याची संधी मिळेल आणि संपूर्ण देश पातळीवर त्याची ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळेल। हा केवळ ह्या ISPLचा आमचा हेतू आहे आणि त्यानिमित्ताने ISPL ही पूर्ण देशात अतिशय प्रभावशाली ठरेल असं त्यामध्ये माझं मत आहे। सर तुम्ही स्वतः आता BCCI ट्रेजर आहात, NCA अध्यक्ष होतात, तुमचा काय आठवण आहे स्ट्रीट क्रिकेट बद्दलच्या? तुम्ही वसीम जाफर बरोबर खेळात बँड्रामध्ये, तर काय आठवण आहे स्ट्रीट क्रिकेट बद्दलच्या? मला वाटतं मुंबईतला असा कुठला युवक नसेल की जो गल्लीमध्ये क्रिकेट खेळला नसेल। माझ्या शाळेच्या मधल्या पॅसेजमध्ये दप्तरावर दप्तर ठेवून स्टंप बनवायचे आणि क्रिकेट खेळायचं टेनिसने। तिथपासून गवालिया टँकला क्रिकेट खेळायला जाऊन सेकंड विकेट कीपर उभं राहायचं आणि प्रत्यक्षात बांद्राला राहतो त्या ठिकाणी कलीम जाफर, वसीम जाफर याच्याबरोबर क्रिकेट खेळणं, या सगळ्या आठवणीतूनच आपलं क्रिकेटवरचं प्रेम वाढलं, क्रिकेटच्या बद्दलची आस्था वाढली। असे असंख्य ॲडमिनिस्ट्रेटर आणि खेळाडू आहेत। रवीचं काय?